Hello and good morning to one and all. I welcome you back in the class of accounts, standard 11. Chapter number 9. The name is ledger posting. In our last video, we have covered how to do ledger posting along with journal entries, and today in question number 6 we are going to do the same exercise. आपको journal entries पास कर कर रखनी है and I'll explain you how to do the ledger posting from those above journal entries. So before proceeding to the ledger posting for question number 6, if you have not written journal entries, please complete it and let us proceed now with question number 6. Now let us begin with question number 6 on your page number 244. In the books of Panchal stores, write journal entries for the following transactions, draw the necessary accounts in the journal, in the ledger and post them accordingly. Now, in our chapter journal entries, we have already studied how to pass the journal entries for any of the following transactions. So this I am not going to teach you again. I have already shown you the journal entries in the books of Panchal stores. I hope you are able to see all the journal entries which are being displayed on the screen. These are rest of the journal entries and total will come to 1,68,630. So you are supposed to solve the journal entries first in your notebook and then we will concentrate how to learn ledger. Now, as discussed earlier, as and when you will prepare the journal entries, हमें accounts को numbering करना होगा so that all those can be done as your ledger. Cash number 1 करेंगे आप. Furniture will be your number 2. Capital will be your number 3. धवल 4. Cash already ऊपर आ गया है, इसके लिए नहीं देखेंगे. Sales will be your number 5. Bank account number 6. जो पहली बार आएगा उसको हम नोट करेंगे, रेस्ट को जाने देंगे. कैश हो चुका है. Purchase will be number 7. Dhara 8. Bank is done. Drawings 9. Cash bank done. Office expense 10. जयेश भाई 11. कैश आ गया है. Allowance 12. Loss due to fire 13. Insurance 14. Purchase आ गया है. कैश आ गया है. Anil Traders 15. Drawings done. Shop rent 16. Cash done. Anil Traders भी आ गया है. बैंक भी आ गया है. So like this way, जहां जहां पे आपने नंबरिंग किया है उन सब का आपको लेजर बनाना है, उन सब के आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. Now, this is the format what I have prepared. Ledger of Panchal stores, cash account. This is your debit side. This is your credit side. Date, particulars, JF, journal folio number, amount. On the another side also date, particulars, JF and amount in rupees. जहां जहां पे मैंने नंबरिंग किया था कैश, बैंक, फर्नीचर, कैपिटल, धवल, सेल्स, सो सारे मैंने उस तरह से प्रिपेयर कर लिए हैं. नेक्स्ट एंड फर्दर इज परचेज, धारा स्टोर्स, ड्राइंग्स, ऑफिस एक्सपेंस, जयेश भाई, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप रेंट, Anil Traders and discount. In all, 16 ledgers I have prepared. So you are also supposed to prepare. Before I start, I would like to revise you once again. Same account, same amount, opposite name. सबसे पहला कौन सा है? कैश अकाउंट डेबिट. हम कैश अकाउंट को पसंद करेंगे. We will come on to the debit side. Opposite name क्या आएगा? टू कैपिटल.
सो हम यहां पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट with the same amount, that is 40,000. ओके, नेक्स्ट हम चूज करेंगे फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, सो द साइड एंड ऑपोजिट उसका नाम लिखना है. सो टू अगेन कैपिटल अकाउंट कितने से है? 20,000 से. सो इन द कॉलम हम लिखेंगे अमाउंट के 20,000. अब अपन को नेक्स्ट कौन सा पसंद करना है? कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड. दिस इज कैपिटल अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. ऑपोजिट नेम लिखेंगे. अब देखो ये क्रेडिट हो रहा है तो सामने डेबिट कैश एंड फर्नीचर हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ऑपोजिट नाम लिखने हैं. सेम साइड कैपिटल क्रेडिट साइड है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 40,000, बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000. Is this clear? Moving further, that is second journal entry. धवल अकाउंट डेबिट. अभी किसको पसंद करेंगे हम? धवल के अकाउंट को. नाउ दिस इज धवल्स अकाउंट. डेबिट साइड हमें लिखना है. ऑपोजिट नेम आएगा सेल्स. सो धवल्स में साइड सेम रहेगा टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट जिसका अकाउंट है. धवल में कितना है? 17,400. ओके, नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट. कौन सा अकाउंट पसंद करेंगे हम? कैश अकाउंट. कौन सी साइड? डेबिट साइड. ऑपोजिट नेम दैट इज टू सेल्स अकाउंट. आप देख रहे हैं सेल्स ऑपोजिट बाजू में है. कैश का ही अमाउंट दैट इज 15,000. ओके, नेक्स्ट हमारा है सेल्स. सेल्स हमारा कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है. और ऑपोजिट नाम है. ऑपोजिट नाम में कौन कौन है? दैट इज धवल एंड कैश. सेल्स का हमारा क्रेडिट साइड. ऑपोजिट नेम आएगा बाय धवल्स अकाउंट एंड बाय कैश अकाउंट. धवल में आएगा 17,400 एंड कैश में आएगा 15,000. ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग. सेल्स में क्रेडिट साइड करना था, ऑपोजिट नेम डालने थे, दैट इज धवल एंड कैश. 17,400 एंड 15,000. नाउ थर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. ऑपोजिट उसका नाम. ऑपोजिट में कौन है? टू कैश अकाउंट. कितने से है? 18,000. सो इन द कॉलम ऑफ अमाउंट 18,000. अब कौन सा उठाएंगे अपन? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट क्या हो रहा है जर्नल एंट्री के मुताबिक? क्रेडिट. सो एज पर कैश इज क्रेडिट, the side will remain the same of same amount. कैश अकाउंट है, साइड भी सेम है. ऑपोजिट नाम आएगा बाय बैंक अकाउंट 18,000. ओके, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट डेबिट. हमें कौन सा चूज करना होगा? परचेज अकाउंट. और कौन सा साइड है? डेबिट साइड. डेबिट साइड में क्या लिखना है? धारा और बैंक. सो दिस इज माय परचेज अकाउंट. मैं यहां पे क्या लिखूंगा डेबिट साइड में? टू धाराज अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. अब देखो धारा में कितना है? 9,600 एंड 8,000. So here it comes 9,600, 8,000. Is this clear? Next,
हमें कौन सा देखना है अभी? धारा का अकाउंट। क्या हो रहा है? धारा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ऑपोजिट में नेम कौन है? परचेज। सो धारा क्रेडिट साइड, ऑपोजिट अकाउंट बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट धारा का 9600। सेम करेंगे किसके साथ? बैंक के साथ। बैंक क्या हो रहा है यहां पे? क्रेडिट। और सामने ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है? परचेज। बैंक में क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट कितने से होगा? 8000। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? मूविंग फर्दर ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ऑपोजिट कौन है? बैंक अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट साइड विथ ऑपोजिट अकाउंट दैट इज टू बैंक अकाउंट। ओके, एंड इस ड्रॉइंग्स में कितना है? 4000। अमाउंट में आएगा 4000। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट। सो सबसे पहले अकाउंट को चूज करेंगे। अकाउंट हमने कैश ले लिया, साथ में डेबिट साइड ले लिया। टू ऑपोजिट नेम आएगा उसका, टू बैंक अकाउंट। गलती से भी बैंक अकाउंट का अमाउंट नहीं लिखेंगे, कैश का लिखेंगे, बिकॉज हम कैश में एंट्री कर रहे हैं। दैट इज 5000। ओके, अभी हमें कहां पोस्टिंग करना है? बैंक में करना है। सो बैंक अकाउंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ऑपोजिट नाम लिखने हैं। कौन कौन से हैं? ड्रॉइंग्स एंड कैश। बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑपोजिट नेम बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बाय कैश अकाउंट। अभी ड्रॉइंग्स कितने से है? 4000 एंड कैश इज विथ 5000। 4000 5000. Is this clear, students? Moving further on 7th, office expense account debit. हम पहले अकाउंट को पसंद करेंगे। अकाउंट में कौन सा साइड है? डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड, ऑपोजिट नेम। नेम में कौन है? टू कैश अकाउंट 2200। ओके, और अब किस में पोस्टिंग करना है हमें? कैश में। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। ऑपोजिट नेम क्या है? ऑफिस एक्सपेंस। कैश क्रेडिट बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 2200. I hope that you people are understanding how we are doing ledger posting from available journal entries which we have already done. Next is जयेश भाई's account debit. अब क्या करेंगे? सबसे पहले जयेश भाई के अकाउंट को देखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। दो बातें, कैश एंड अलाउंस। दिस इज जयेश भाई's अकाउंट। यहां पे लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट टू अलाउंस अकाउंट। कैश में कितना है? 48 एंड 30, 4800. अनदर इज 30. ओके, अब हम क्या करेंगे? अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। सो हम कैश अकाउंट को देखेंगे और ऑपोजिट उसका नाम। ऑपोजिट में कौन है? जयेश भाई। दिस इज योर कैश अकाउंट। ऑपोजिट क्रेडिट साइड में ऑपोजिट नाम। हमने क्रेडिट साइड क्यों देखा? बिकॉज कैश कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। क्या लिखेंगे? बाय जयेश भाई's अकाउंट। कितना है? 4800. ओके, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? अलाउंस। अलाउंस कौन सी साइड है हमारा? क्रेडिट साइड। अलाउंस अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑपोजिट नेम में है जयेश भाई बाय जयेश भाई's अकाउंट,
और अमाउंट में आएगा आपका 30। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। लॉस कितना है? 600 का। हम यहां पर कौन सा साइड देख रहे हैं? डेबिट साइड। और ऑपोजिट में कौन सा नाम है? परचेज अकाउंट है। सो लॉस बाय फायर अकाउंट में सेम साइड, दैट इज डेबिट साइड, ऑपोजिट नेम में टू परचेज अकाउंट। ओके, और अमाउंट कितना है? लॉस हमारा है दैट इज ऑफ 600। ओके, नाउ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। ऑपोजिट नेम में क्या है? परचेज। कितने से हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी डेबिट? 2600 से। सो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट साइड सेम साइड होता है पर ऑपोजिट उसका अकाउंट नेम होता है। टू परचेज अकाउंट 2600। ओके, अब क्या है आपका नेक्स्ट? परचेज अकाउंट को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। सो दिस इज योर परचेज अकाउंट, दिस इज योर क्रेडिट साइड, सेम साइड। ऑपोजिट में दो नेम है तो दोनों लिख देंगे। बाय लॉस ड्यू टू फायर, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फायर में लॉस कितना है? 600 और इंश्योरेंस कंपनी 2600। मूविंग फर्दर, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना है। दिस इज अवर परचेज अकाउंट, दिस इज अवर डेबिट साइड। डेबिट में दो हो रहे हैं, ऑपोजिट नेम में दो अकाउंट्स हैं, उन्हें हम डेबिट करेंगे। यहां पर आएगा टू कैश अकाउंट, कितना? 2600 प्लस अनिल ट्रेडर्स आएगा टू अनिल ट्रेडर्स, कितने से? 4000 से। ओके, ये हुआ हमारा परचेज अकाउंट का इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैश। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है और ऑपोजिट में नेम कौन है? परचेज। सो हम देखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सेम साइड। कैश कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। हम भी यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट, सेम अमाउंट, कितना? 2600। फाइन। नेक्स्ट इज हमारा अनिल ट्रेडर्स। अनिल ट्रेडर्स का अकाउंट हम सर्च आउट करेंगे। दिस इज आवर अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। अनिल ट्रेडर्स क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट नेम में है बाय परचेज अकाउंट। कितने से हो रहा है? 4000 से। वी विल राइट 4000। ओके, मूविंग फर्दर, दैट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अभी हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को सर्च करेंगे। ओके, दिस इज आवर ड्रॉइंग्स अकाउंट। फाइन। नाउ ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो रहा है एज पर द क्वेश्चन, एज पर द जर्नल एंट्रीज, सॉरी, वो डेबिट हो रहा है। हम भी यहां पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और ऑपोजिट में नेम कौन है? कैश है। सो टू कैश अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स कितने से डेबिट हो रहा है? 6000 से। सो 6000। ओके, नेक्स्ट इज शॉप रेंट अकाउंट डेबिट। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और ऑपोजिट अकाउंट है कैश विथ 4800। सो शॉप रेंट डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट 4800। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, हमारा कैश अकाउंट है। स्विच ओवर आ जाएंगे कैश के ऊपर। कैश हमारा क्रेडिट साइड है। क्रेडिट में दोनों ऑपोजिट को हम लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स में कितना अमाउंट है? 6000 बाय शॉप रेंट अकाउंट आएगा कितना? शॉप रेंट अकाउंट इज 4800। ओके, नाउ द लास्ट हमारा पोस्टिंग होगा अनिल ट्रेडर्स टू
बैंक। सो हम आ जाएंगे अनिल ट्रेडर्स के ऊपर। हमारा अनिल ट्रेडर्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सामने नेम आएगा ऑपोजिट का टू बैंक अकाउंट 4000। ऑपोजिट साइड में क्या करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। दिस इज अवर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय अनिल ट्रेडर्स अकाउंट अमाउंट 4000। सो लाइक दिस वे हमने लेजर पोस्टिंग किया, किसमें से, जर्नल एंट्रीज में से। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेजर पोस्टिंग फ्रॉम journal entries. And now your today's homework is illustration number 2, along with that question number 6, which I have taught you right now. Thank you students for listening.